हाँ सर। Good. So, this is a techno sales training for LED video. Specifically, जब आप कोट करते हैं LED video walls customer को, what are the fundamentals that impact pricing? And so, उस चीज में I just want to take a little more details. The large principle is to understand COGS of COGS. Does anyone understand COGS? What is COGS? COGS stands for cost of goods sold. So if you are buying a LED video wall, you need to know the cost of goods sold, which is the cost of the video wall. What differentiates you and the winning party is that the winning party understands the cost of goods sold. कि एलईडी वीडियो वॉल को बनाने में जो कंपोनेंट्स लगते हैं उसकी कॉस्ट क्या है. दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ बिग कंपनीज वो मास्टर्स इन फिजिक्स वालों को परचेज ऑफिसर्स बनाते हैं, because those guys are able to peel off the layers of every end product to come to a cost. For example, PVR कहता है one of the components in video walls is modules. उसकी फिक्स कॉस्ट करती है, because they have understood by going deep inside the components of a video wall कि उसमें क्या क्या लगता है. So similarly, whenever you are quoting to any customer, unless these aspects are clear to you, आप उसी के कस्टमर के लिए मर्सिडीज कोट करोगे जबकि उसकी रिक्वायरमेंट टोयोटा की है या उससे भी नीचे की है और हमेशा बंद. The first and foremost requirement to understand the price is the pixel pitch, right? Pixel pitch equals resolution. Pixel pitch determine normally होता है by viewing distance, कि normal viewing distance क्या है. And for example, if the viewing distance is 2.5 meters to 2.5 mm की pixel pitch या उससे थोड़ी सी better is what is acceptable. So Muskan, can you do me a favor? सबसे पहले can you write on the board pixel pitch? Pixel pitch, Anjali? Yes, sir. The distance between two pixels is called the pixel pitch, right? So सबसे पहले आपने लिखा pixel pitch. This is the first and foremost variable to come to a costing of the LED. Second most important costing जो आती है कि इस pixel pitch में लैम्प कौन सी यूज होती है. So can you put lamp? There are major Chinese manufacturers of these lamps. For example, there is Hongshen, which is cost effective. There is King Light, जो middle tier है, and Nation Star, which is the most premium. And there are, of course, some more as well. So far, there is no technology in India that can show किसकी लैम्प है. Normally, आप सर्टिफिकेट ले आते हो लैम्प वाले से, वो कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है. इसके बाद the third most priciest aspect is cabinet. So cabinet comes in few materials and further dimensions. So cabinet material लिखिए पहले. The most expensive form of cabinet material and the most premium and the most beneficial is aluminium die cast. ये precision casting होती है इसकी, and the most easiest to install and the most long lasting because it has the best heat dissipation. तो उससे components की और electronics की, क्योंकि heat up कम होता है तो सबसे longest life होती है. After this is a MS cabinet, mild steel,
मेटल कैबिनेट जिसको कहते हैं, ये आज की डेट में इंडिया में बहुत बन रहे हैं. देयर आर मेनी वेंडर्स दैट हैव कटिंग एंड बेंडिंग मशीन्स including Kian also that can eventually start manufacturing this kind of. Mild steel के बाद there is a pipe system देखिए जो कैबिनेट नहीं होती है यूजर डायरेक्टली ड्रिल्ड पेस्टेड onto pipe. This is the most cost effective और प्राइस में आज की डेट ये सबसे ज्यादा प्रेवलेंट देख रहा. इसमें लोहे की पाइपें आती हैं, उसका ग्रिड बनाया जाता है और उस पे मॉड्यूल आपका चिपकाया जाता है. Mild steel, that is alloy of aluminum or something. आयरन मेटल जिसमें पावरिंग होती है. ओके, तो these are the three types and die cast being the most premium, then mild steel, then pipe based being the most cost effective for LED video. अब die cast भी multiple price points पे आते हैं. सबसे पहले most premium cabinet of die cast is in a size of 600 by 337.5 जिसको HD ratio भी कहते हैं, तो 60/9 को कहते हैं. So why don't you write down all के वहाँ में और उसी तीन एरोज one is 600 by 337. I'm firstly going to cover Indore. Then इससे और सस्ती in fact there is another premium one in 500 by 500 and 1000 by 500. Similar, although 600 is a little more premium. उसके बाद ये वाली configuration आती है 1000 by 500 और 500 by 500. Lastly, the most cost-effective cabinet is 640 by 480. So you must be completely aware कि कस्टमर को किस तरह की कैबिनेट चाहिए भी और नहीं चाहिए भी. Start unless the customer knows कि किस टाइप ऑफ कैबिनेट उसको चाहिए और उनमें प्राइस डिफरेंस और टेक्नोलॉजी डिफरेंस क्या है, always start from the bottom. और otherwise आप दोगे 7x337, कंपटीशन उनको कैबिनेट ही नहीं देगा और आप फिर आप combination of module and cabinet type is also dependent on कि कौन सी ज्यादा प्रीमियम है. आज की डेट में there are cableless design that is the most premium, meaning module में कनेक्टर बना होता है और कैबिनेट में कनेक्टर बना होता है. You simply need to plug it into the connector and it switches on. Again, cableless design is also a premium feature. Then you got cables वाले options जहां आपकी ribbon cables होती है, वो अलग अलग कनेक्ट करते हैं आप for your wall. Those are of course the cost effective option. This is specifically in indoor. कुलदीप, आउटडोर में क्या dimensions हैं आपके cabinets की die cast में, आप बता सकते हैं? नीचे लोगों पहले कैबिनेट इंडोर, नीचे लोगों कैबिनेट मटेरियल जो आउटडोर. मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, लैंप में भी
तीन ग्रेड्स होते हैं लैंप के अपार्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। एक आयरन वायर होता है, एक कॉपर वायर होता है, एंड द मोस्ट प्रीमियम इज द गोल्ड वायर। सो apart from the lamp manufacturers, these three wire encapsulation types are also important to understand price। and लैंप के दो पहलू, एक होती है वारंटी, कस्टमर एक्सपेक्ट्स 10 layer long life with a 3 year warranty, but yet they're very conscious and they don't really care, then obviously so always understand from the vendor of the module के किस तरह की वायर दे रहा है और आस्क फॉर। ये बेसिकली आउटडोर के साइजेस हैं, जो मटेरियल जैसा है वैसे किसी मटेरियल में ही आता है। जनरली हम आउटडोर में प्रेफर करते हैं माइल्ड स्टील एमएस का एंड पाइप फ्रेमिंग को हम यूज़ करते हैं कैबिनेट के साथ में। डायरेक्ट मॉड्यूल हम आउटडोर में नहीं लगाते हैं कहीं, क्योंकि वेदर प्रूफ हमें देते हैं डायरेक्ट मॉड्यूल लगाएंगे तो वेदर का इम्पैक्ट आता ही आता है। एमएस कैबिनेट के साथ हम जाते हैं माइल्ड स्टील कैबिनेट के साथ लोएस्ट प्राइस पे। अदरवाइज डाई कास्ट भी ले सकते हैं बट वो कॉस्टली हो जाएगा। ये डायमेंशंस है 960 by 960, 960 640, 960 by 576, 1152 by 960, 1152 by 576, 1280 by 960। ये सारे आउटडोर एमएस कैबिनेट के कैटेगरीज हैं। व्हाट अबाउट आउटडोर एल्यूमिनियम डाई कास्ट, उसकी क्या साइज है? साइज सर यही रहता दैट्स 960 by 9, ये साइज इज स्टैंडर्ड साइज। इसमें प्राइस इंफॉर्मेशन सबसे सस्ता है, सबसे कॉमन कौन सा है? 960 तो कॉमन है इसमें। सबसे सस्ता भी वही है डाई कास्ट में, सबसे सस्ता भी यहाँ वही है डाई कास्ट। 960 by 960 means इसमें बेसिकली आउटडोर में पिक्सल पिच कौन सा है? सी पिक्सल पिच हमेशा डिपेंड करता है आपकी विंग डिस्टेंस पे। अगर हम आउटडोर में जाते हैं, एक फसाड पे हम लगा रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑलमोस्ट होगा 10 मीटर या 12 मीटर का डिस्टेंस होगा बेयर मिनिमम। तो P4.8 या P6 पे हम जाते हैं, सबसे डाउन जो हम लगाते हैं आउटडोर में, मतलब 2.2 मतलब ऑलमोस्ट आपका 1 मीटर की लोअर हो गई। क्योंकि 3 into 3 हो रहा है ना डिस्टेंस, मतलब जितने मीटर हो जितने एमएम हो उतने मीटर का डिस्टेंस ऑप्टिमल, मतलब 4.8 5 मीटर मीन 5 15 फीट तक का, बाल को 15 फीट 5 मीटर। इसमें जो पिक्सल पिच आती है वो 4.8 है, P6 6.8 है, 3.91 भी आता है इसमें अगर और फाइन करना है तो। उसके बाद 4.0 भी आती है। नाउ जो प्राइवेट में है, दे आस्क नॉर्मली वो सिर्फ फर्स्ट बताते हैं, वो पॉइंट्स वाला नहीं होता, वो P4 बोल देंगे, P3 बोल देंगे। सो यू नीड टू बी अगेन स्मार्ट कि कौन सी आप कोट करोगे। अगर कोई आपको P4 बोले तो 3.8 नहीं करना, 3.8 आता है, 3.9 नहीं करना है, उसको 4.8 करना है, because they have not specified the last two digits and you also then don't need to specify the last two. 3.9 is actually P3. It is not 4. There is a big difference between 3.9 and 4.8. So unless the customer specifies the last two digits point के बाद आपको भी specify ना करें और उसको राउंड डाउन करें, माने के ज्यादा पिक्सल ज्यादा पिक्सल पिच वाला प्रोडक्ट दें। अगर वो P4 दे दो 4.8 दे दो, तो ये आपको इसमें टेक्निकली वो भी P4 ही है।
एक बार ये कंसेप्ट सर ने बोला वो समझ हो जाएगा। एक और चीज लिखिए, यही लैंप से रिलेटेड है। तो हमने लैंप के मैन्युफैक्चरर्स की बात की, हमने लैंप में लैंप टाइप्स की बात की। अब मैं इम्पैक्ट क्या है, उसका इम्पैक्ट होता है ब्राइटनेस, रिफ्रेश रेट एंड लाइफ। सो जब आप बात करते हैं अपने मैन्युफैक्चरर से वोट लेने के लिए, अगर कोई ब्राइटनेस रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप 300 निट्स वाला भी इंडोर प्रोडक्ट दे सकते हैं, तो 600 और 800 भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं। जितना होगा ज्यादा उसका कॉस्ट लगेगा। सिमिलरली रिफ्रेश रेट, जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा ज्यादा महंगा होगा। सो ये 1920 से भी शुरू होती है रिफ्रेश रेट, और ये 7000 प्लस में भी जाता है। एवरीथिंग हैज 1920 हर्ट्ज। हर्ट्ज। सो यूजली तो सर जैसे हम 50 हर्ट्ज को हम दे रेफरेंस, सो कैसे वो इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन फ्रेम। दिस इज योर in hertz refresh rate, what the frequency of refresh rate. So broadcast में हम 340 से या 384 ही यूज करते हैं, बिकॉज वो क्या के रिफ्रेश से मैच करता है, हाई रिफ्रेश रेट। एंड जो आपके नॉर्मल डिजिटल साइन एप्लीकेशन है जहां नेकेड आई से करना है, फील फ्री टू कोट 1920 and below. You don't have to go to 3800 and also those premium models. आप आ जाओ। horizontal resolution से लाइटर वैल्यू फिर आगे भी आती है 600 38 मतलब ये 7000 प्लस में 7600 तक भी जाती है। ये लोएस्ट नहीं है, यहाँ की रोटेशन है, यहाँ 4000 से शुरू होती है, यहाँ ये 4000 आउटडोर 3000 भी शुरू होती है, 3500। ये सही है सर, स्टैंडर्ड। या बट नॉन स्टैंडर्ड में भी आप यूज कर सकते हैं अगर कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट। सी वेरी सिंपल, uneducated customer is the most dangerous. Either educate them and convince them, or do what the competition is doing, otherwise you will lose. It is unfortunate, but that's the truth of private world. We have also discussed other aspect is scan mode, या scan rate, scan mode, sorry. This comes in 1/32, 1/16, 1 by। इसका मतलब क्या है कि एक केबल कितने मॉड्यूल्स को रन करती है। 1/16 means केबल मॉड्यूल्स, which means the cable fails, 16 modules will go down. 1/30 जितना ज्यादा ये नंबर होता है 1/30 more cheaper 1/16, क्योंकि ये केबल से 16 ड्राइव करते नहीं तो 32 को करती, तो कम केबल्स लगती हैं, या सॉरी कम केबल्स लगती है। इट इज अ ऑफ द जो 1/48 और सस्ती हो जाएगी, क्योंकि एक केबल 48 मॉड्यूल्स को रखती है। दिस इज ये जो रिलेटेड टू जो केबल मॉड्यूल्स हैं उसके जो इंटरनल लूपिंग होता है, कंट्रोलर से एक केबल आती है, वो कितने मॉड्यूल्स को लूपिंग करके कर सकते हैं। तो इसमें क्या मिनिमम मैक्सिमम Let's range 16 should be the minimum. उससे better। Then of course chip driver ICs कौन से यूज होते हैं? There are various OEMs, but again यहाँ कस्टमर को एजुकेट किया जाता है which is the best, but अभी तक typically हम इतने डिटेल में गए नहीं। यार मैं कॉग्स और कॉग्स की बात कर रहा हूँ, ये तो हम आईसी लेवल पे मॉड्यूल, बट टाइम आएगा जहाँ ये भी रेलेवेंट
हो जाएगा। एवरी कैबिनेट हैज रिसीव कार्ड्स, वो नॉर्मली सेंडिंग कार्ड कंपनी का ही होता है, प्रोप्राइटरी कॉल्स होती है। स्टैंडर्ड इज नोवास्टा। उसके बाद देयर इज आल्सो कलर लाइट, उनकी अपनी प्रोटोकॉल। ये इसका है प्रोटोकॉल। ये these are Chinese manufacturers sending card, जो सिग्नल की प्रोटोकॉल होती है, because the signal travels on IP, uncompressed IP. What is that third one? एक और H से नाम का Voodoo. Voodoo. वो सर कलर लाइट एक यूआई स्टार भी हाँ, Kaistar, correct. Right now we only go to Nova Star because our module guys work with Nova Star. तो ये किस कंपनी के कंट्रोलर से कंपनी का मतलब Same. एवाई उसी का ही कंट्रोलर है। कंट्रोलर इज सेंडिंग कार्ड और रिसीविंग कार्ड कैबिनेट के अंदर होता है, हाँ वो सेम कंपनी के होते हैं, नहीं तो वो नहीं चलेगा। हमारे जो एलईडी वॉल्स हैं वो नोवा स्टार के साथ है। लास्टली इसमें समथिंग टू रिमेम्बर इज किस माध्यम से आप प्रोडक्ट को import कर रहे हैं। इफ इट इज कमिंग बाय सी, डिफॉल्ट प्लीज ओनली पोर्ट बाय सी एंड गिव अप्रोप्रिएट डिलीवरी टाइम। आपका कॉस्ट सस्ता पड़ेगा। अगर आप एयर से ला रहे हैं महंगा पड़ेगा। कंपटीशन बाय डिफॉल्ट सी से ही लाता है, आप भी डिफॉल्ट में सी से ही लो। 8 to 12 वीक्स का डिलीवरी टाइम दे दिया बाय डिफॉल्ट। लेट देम कम बैक टू यू एंड से आई वांट अ फास्टर डिलीवरी, देन यू कैन ऑलवेज मैनेज योर प्राइस। एनी कमेंट्स मेरी तरफ से? लैंप्स का एक बार जो वायरिंग है उसको और समझाना जरूरी है। गोल्ड, कॉपर एंड आयरन। तो जैसे we discussed this, the cheapest lamp is iron lamp. Frankly, we have not used it till now, but जिस तरह से competition हो रहा है इसी तरफ आउटडोर और इंडोर एलईडी जहाँ डिजिटल साइनेज की एप्लीकेशंस हैं वहाँ आ रहा है। नॉर्मली आयरन लैंप की ब्राइटनेस भी कम होती है और रिफ्रेश रेट भी कम होता है, एंड ऑफ कोर्स लाइफ एंड वारंटी इज आल्सो लेस। कॉपर इज अ स्टैंडर्ड, नाउ वारंटी इज आल्सो 4-5 साल की वारंटी भी दे सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गोल्ड आज की डेट में हमने बंद ही कर दिया है, अनलेस कस्टमर स्पेसिफिकली मांगे या कुछ, बट अभी रियली गोल्ड वायर इज नो लॉन्गर द डिफॉल्ट। 2020 तक गोल्ड वायर मिल गए। ऑलमोस्ट 30 to 40% फर्क है बिटवीन बेसिक इंसुलेशन। उस को गोल्ड बनाया जाता है, बेसिकली इसमें ऑक्सीडाइजेशन कम होता है। आयरन की सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन होती है, फिर कॉपर की, गोल्ड की। गोल्ड इज लोएस्ट ऑक्सीडाइजेशन, ताकि इसलिए उसकी लाइफ ज्यादा रहे। सो दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस। और कुछ डिटेल उसकी बताना चाहिए। लेकिन जनरली अगर कहीं भी कोई ऐसा कस्टमर है जिसके नियर बाय एटमॉस्फेयर में अगर सल्फर का कोई प्रॉब्लम है तो उनको एजुकेट करना है गोल्ड वायर की। रेस्ट ऑफ कोई भी आप वायर दोगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा विद इन 1 ईयर, और मे बी उससे पहले या चल जाएगा तो 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चल। सल्फर कैसे कंसीडर करेंगे, लाइक उसके नियर बाय नदी नाले वगैरह, यमुना नदी नदी कोई एटमॉस्फेयर वैसा हो या नोएडा में नदी हो। सबसे ज्यादा है। नोएडा में सबसे ज्यादा। फॉर एग्जांपल नोएडा में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो एटेंटी का प्रोडक्ट काफी स्टेबल है। फॉर एग्जांपल उसमें हम मल्टी लेयर एंटी करोजन कोटिंग, एंटी रस्ट नहीं, रस्ट अलग है, करोजन अलग है। डाइकास्ट में रस्ट नहीं लगता, तो वो फंडामेंटली गलत है। लोग उनको बोल देते हैं एंटी रस्ट कोटिंग दे के दे रहे हैं, कुछ नहीं होगा। एक्चुअली एंटी करोजन जो सल्फर से करोजन होती है उसके अगेंस्ट कोटिंग चाहिए होती है। एंड
वेंडर से बोलोगे दे हैव द मशीनरी टू डू 3 or 4 कोट्स, और हर सोल एक कोट खाया जाता है, देयर इज प्रोटेक्टेड। ये नोट डाउन कर लिया तुमने इन पैराडॉक्स? नहीं एक मिनट, इसकी फोटो की है लैंप। एक होता है, एक होता है, ये 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। एलईडी स्लीपर आता है जियो पर आता है सी। ये इस फैक्टर में सबसे बड़ा इम्पैक्ट इनका भी रहता है। कस्टमर आप एलईडी मांग रहा है, अगर आप सीओ भी दे दोगे नहीं बिकने वाला। ये एक पॉइंट और है जो आप ऐड कर सकते हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी कस्टमर के लिए डाइकास्ट प्लस 640 480 का कैबिनेट, एसएमडी एंड हॉन्गचन लैम्प फॉर 2 years वारंटी। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है फिलहाल के लिए। रेस्ट अगर बजट अच्छा है तो आप लैम्प इंक्रीज कर सकते हो, मेरे हॉन्गचन की जगह आप रिंग लाइट दे सकते हो, कैबिनेट स्टिल आप 640 480 रखो। एंड जो सीयूबी प्रोडक्ट है वो 640 480 कैबिनेट में नहीं आता, वो आता ही आपका 600 by 37.5 वाले में है। उसमें कोई दूसरा है ही नहीं अगर आप सीओबी में जा रहे हैं। वो छोटे पिक्चर हाँ। उसके लिए वायरिंग वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है। 640 में आपके पास वायरिंग ऑप्शन है, कैबिनेट टू मॉड्यूल जब आप अटैच करोगे तो वायरिंग ऑप्शन है, बट सीओबी में आपके पास वो ऑप्शन नहीं होता। सीओबी एंड जीओबी में कॉन्ट्रास्ट बेटर होता है ट्रेडिशनल एसएमडी से, तो आपकी ब्लैक स्पॉट दिखते हैं। वॉल को भी अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादा गाड़ी ब्लैक दिखेगी स्विच ऑफ पोजीशन कंपेयर टू एसएमडी जो थोड़ी वाइटिश आता है उसमें। तो डेफिनेटली कस्टमर के पास they are willing to spend more, then GOB and COB is a good option. Plus, because of COB and GOB, chip on board जिसको कहते हैं, glue on board जिसको कहते हैं, इसको प्रोटेक्टिव लेयरिंग हो जाती है ताकि आपके SMD जो LED है वो एक्सपोज ना रहे। तो थोड़ा बहुत अगर ट्रैफिक एरिया को इम्पैक्ट हो जाता है हल्का सा, LED नहीं टूटेगी एज कम्पेयर टू SMD। उसके बाहर तो एक नेट टाइप का भी आता है ना, लैंप के बीच में गैप लगाने के लिए, वो मास्किंग वो SMD में आता है। सब भी मार रहा है। तो अगर कभी भी ऐसे वो उसको काला और बनाने के लिए, उसका और कुछ काम नहीं है, थोड़ी सी प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा हो जाती है। जनरली एसएमडी पे अगर आप हाथ लगा के अगर मास्किंग नहीं आप ऐसे करोगे तो बाहर आ LED जाएगी, जाएगा। लैंप बाहर आ जाती है। मास्किंग है तो थोड़ा कम आएगी, बट जीओपी और सीओबी में आपको इम्पैक्ट आएगा कि एसएमडी के ऊपर कोई चढ़ा हुआ है, कोई लेयर ऑलरेडी है, तो आप जितना भी तेज करोगे एकदम स्मूथ सर्फेस है। इसमें भी कोई HDR का कोई कॉन्सेप्ट इसमें भी होता है, वीडियो वॉल में भी HDR HDR ग्रेट पॉइंट, दिस इज अ प्रीमियम फीचर जो अभी हमने देखा HDR 10 प्लस अदर HDR प्रोटोकॉल, और वहां हमने देखा है अगेन कस्टमर को भी पता नहीं होता, तो आप वीडियो HDR की दे सकते हो, प्रोसेसर नहीं देते HDR का, तो क्या होगा वो प्रोसेसर बेसिकली जो हमने देखा है पास थ्रू कर देता है HDR सिग्नल को डाउन कन्वर्ट करके। सो HDR दिख नहीं रही है पर पास थ्रू हो रहा है। So you have to ensure content is HDR, video controller is HDR, and video wall is HDR. तीनों चीजें। Again, customers do not know this, and ये और shortcut methodologies हैं जो competition use करता है। value then For HDR तीनों video wall भी HDR, उसमें डिस्प्ले HDR compatible होना चाहिए, जो आपका कंट्रोलर सिग्नल दे रहा है वो भी HDR कंपैटिबल होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स कंटेंट तो HDR हो जाएगा। जिससे आप देना चाह रहे हैं वो भी आपका होना चाहिए। ठीक है, सेम ऐसे एक पॉइंट और है, तो 3D कोई वीडियो वॉल 3D नहीं होती, कंटेंट 3D होता है। जब आप शेप में लगा रहे हो, बट इस रिसेंटली पता चला कि में भी आप वो क्या तो सिर्फ कंटेंट है, उसमें एक फॉल्स बॉर्डर डिस्प्ले में ग्राफिक्स में ही आ जाता है और दिखाया जाता है कि गाड़ी उस के बियॉन्ड जा रही है। वो टाइम लैप्स का वो भी नहीं, टाइम लैप्स इट इज बेसिकली कंटेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद द वीडियो ऑल ऑफ दो भी जैसा ये बॉर्डर आ रहा है ना ब्लैक, ऐसा कुछ चारों साइड एक बॉर्डर बना के बॉक्स एक्टिव डिस्प्ले का, ये भी एक्टिव डिस्प्ले
तो जब इमेज आती है तो इसके बाहर यहाँ तक आ जाती है इमेज, तो वो इम्पैक्ट देता है कि वॉल के बियॉन्ड जा रही है।